Hello everyone, welcome to Parul Tuitions. I'm Parul, and if you are a class 9 CBSE student, you have come to the right place. This channel is dedicated to the new NCERT syllabus for class ninth, and my goal is very simple. We will complete every single chapter, cover every concept, every example, go through every in-text question, complete every exercise, and cover every important line of the NCERT word by word. I don't believe in making students memorize things without understanding them. Here, we'll first understand the concept in the easiest possible way and then learn how to write answers that will score well in school exams. Whether you are preparing for your school exams, building a new strong foundation for class 10th, or just want to understand your textbook properly, these videos are for you. I'll also cover important questions, common mistakes, exam tips, and NCERT based practice along the way so you don't have to keep searching for different sources. If you are serious about mastering class 9 syllabus, subscribe to my channel, turn on the notification bell, and let's start this journey together. I'm gonna teach you both the subjects. The exploration book of class ninth, and these are the updated new NCERT books, and I'm really liking the syllabus of this. It has really nice chapters and quite nice activities between them and good content, overall good content. Same goes for maths. But some kids are saying that part 1 is only the half of the ninth grade, and it has like how many chapters? It has total 8 chapters, and I have been through most of them. And the questions are really nice, the examples are nice, the concept and the theory in between the exercise is also very nice. I think everyone is gonna like this book. It is more like based on real life, practical examples and stuff like that. And questions are easy, no doubt. Questions are easy. They are of ninth standard, but topics are quite interesting, and it's a quite nice introductory book. So today we are gonna start studying science. It is widely accepted among the scientific community that life is originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in oceans. Hot springs are examples of such environment. In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures, nearly at the boiling point of water, even in cold climate. These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. The organisms living in these hot springs are mostly heat loving bacteria called thermophiles. अब thermophiles को देखें तो thermo का मतलब होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, तो टेम्परेचर लविंग, हीट लविंग जो बैक्टीरियाज है वो हमें पता चलता है कि वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, जो कि कैसे हैं, यूनिसेल्युलर है, मतलब वो पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है. Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow, studies these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. अब उन्होंने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उनके आसपास फटाफट से बनता है. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier of that डिफाइंस है सेल. मतलब कि पहले जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उस वहां पे होंगे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, उन पे टाइम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होना शुरू हो गई. वो काइंड ऑफ क्या उन मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आई होगी, और फिर टाइम के साथ इवोल्यूशन के साथ में वही जो लेयर है वो क्या बन गई है, बैरियर बन गई है, जो कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से. तो इट्स काइंड ऑफ इवोल्यूशन, राइट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये तो हम पता नहीं कब से पढ़ते हुए जा आ रहे हैं कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल at which life exists.
Some organisms such as bacteria, yeast consist of only one cells. उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बेसिस पे जी रहा हो वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि का मतलब वन, सेल्युलर का मतलब सेल। While others like plants, fish, birds और humans are made of millions of cells. मिलियंस ऑफ सेल्स से बने तो उनको क्या बोल देंगे हम? मल्टी सेल्यूलर, दैट वर्क टुगेदर। अब मल्टी सेल्यूलर है तो ऐसा नहीं है ना हर एक सेल अलग अलग अपना करे जा रही है कुछ भी, नो। वो क्या करती हैं? साथ में काम करके पूरे ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। अब क्या होता है जब बहुत सारी सेल्स होती हैं वो मिल के जब एक तरीके का काम करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू बोलते हैं। उस वो क्या बना लेती हैं? बहुत सारी सेल्स मिलके जो कि सिमिलर फंक्शन कर रही हैं क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब क्या अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं वो और ऑर्गेनाइज होकर क्या बन जाते हैं? ऑर्गन बन जाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वर्क करते हैं, एक सिस्टम पे चलते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे हमारा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। तो वो क्या है? ऑर्गन्स का सिस्टम ही तो है कि भाई एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के साथ में किस तरीके से वर्क कर रहा है एक अपने को अलाइव रखने के लिए। such as nasal pores, nasal cavity, trachea, lungs form respiratory system। अब ये जो तीन चार चीजें हैं ये क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब ये सारे ऑर्गन से क्या बन रहा है? हमारा पूरा एक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से हम आज सांस ले पाते हैं। Even when cells are organized into tissues, organs, and organ systems, the cell remains the functional unit of the structure and function of all living organisms. जब सेल्स ऑर्गेनाइज्ड भी है टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में, तो भी सेल ही क्या है? उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ये छोटी छोटी सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप का काम कैसे कर लेती हैं भाई? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल? उनके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो फंक्शन कर पाती हैं? हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर? अब उनके पास तो मुंह है नहीं कि बोल के बोल दिया कि भाई मेरे को इस चीज की जरूरत है तू ये बना, मैं तेरे लिए ये बनाती हूँ, नहीं। क्या होगा? वो कम्युनिकेट करेंगी। वो कैसे करेंगी? विल स्टडी। डू सेल्स लिव फॉर एवर? क्या वो हमेशा जीती हैं? और दे डाई, या मर जाती है? तो मर जाती है तो उनकी जगह कौन लेता है? नई सेल लेती है या क्या होता है? वो भी हम पढ़ेंगे। In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of सेल्स। अब देखिए पढ़ना कैसा है सेल्स को। मेरे को इस बुक की यही बात अच्छी लगती है कि चलो ठीक है आप सेल को पढ़ा तो रहे हो लेकिन आप बच्चे को पहले ये भी बताओ कि भाई सेल की स्टडी होती कैसी है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज यूज होते हैं, राइट? हाउ टू स्टडी सेल्स। what do we call the ability of human eye to see two very close objects as separate distinct? अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एकदम पास में हैं, मान लेती हूँ ये दो पेन है, ये दोनों एकदम पास में है, तो अभी तो अपने को नहीं लग रहा है कि ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस है, बट वो हमारी बेयर आइज को, नेकेड आइज को दिख नहीं रहा है। अब इसके बीच में जैसे ही मैं थोड़ा सा गैप करूंगी ना, जैसे ही मेरी आंख को दिखना शुरू होगा कि मतलब हाँ मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ इन दोनों पेन्स के बीच में क्या है? गैप है। तो उसी तरीके से ह्यूमंस की जो आई है कहीं ना कुछ डिस्टेंस होता है ना, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि वो दोनों चीजें अलग हैं। अगर मैं दो डॉट बनाऊं एकदम, मैंने नजदीक नजदीक बना दिए, नजदीक बना दिए, इनके बीच में तो अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है। अगर मैंने यही बना दिए तो इनके बीच में तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये तो एक ही डॉट बन गया, है ना? इमेजिन टू tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate। जैसे इस वाले डॉट में नहीं दिख पा रहा है। When viewed from about 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारी आंख का क्या है? नियर पॉइंट है, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct। मतलब हमारी ह्यूमन आइज के अकॉर्डिंग कोई भी दो पॉइंट्स जिसमें 0.1 mm का डिस्टेंस हो वो हम डिस्टिंक्टली अलग अलग देख सकते हैं। अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, जैसे ये दिख रहा था। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो क्या बोलोगे? ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? पहली बात तो डेटा है कि 0.1 mm होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है? जब दो पॉइंट्स को हमें डिस्टिंक्टली देखना है तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.1 mm। और ये चीज भी याद रखना है कि जो नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब नियर पॉइंट होता क्या है? देखो, आपने कभी
कोई आपका पेन वगैरह है, वो अपने फेस के पास लेके जाओ, आंखों के पास में, जहां तक आप उसको विदाउट अपने आई पे स्ट्रेन हुए हुए या फिर विदाउट किसी प्रॉब्लम के या ब्लरी दिखने से पहले तक जहां तक देख पाओगे ना, वो आपकी आंख का क्या है, नियर पॉइंट है। उससे पास जब आप लेके आओगे ना उस पेन को या ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है ना, वो नियर पॉइंट होता है। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye। अब क्या होता है unaided eye का मतलब होता है naked eye, मतलब कुछ भी ऐसे माइक्रोस्कोप या फिर चश्मा वगैरह लगाए बिना, तो जो अपनी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, छोटी होती हैं, कि एक सिंगल सेल को हम नहीं देख पाते हैं। This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and functions of cells that are much smaller than the limit of resolution of human eye? अब ये 0.1 mm से छोटी होती हैं सेल, तो उसको अपन कैसे देखेंगे अपनी बेयर आइज से, नहीं देख पाएंगे ना। तो उसके लिए कैसे देखते हैं साइंटिस्ट, अब वो तो हमें पता है, बेसिक सी चीज है ना। यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा हुआ है हमने 8th क्लास में। जो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को, कोई चीज छोटी है उसका साइज बड़ा करके देखना है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसको बड़ा करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, कॉन्वेक्स लेंस को, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मतलब कि एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सेल होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें बड़ा दिखने लग जाएगा। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल को देखा है। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया वो उन्होंने खुद डिजाइन किया था, और उसकी कैपेबिलिटी क्या थी भाई, 200 से 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन था उसका, तब जाके वो हमें माइक्रोस्कोप में दिखा। While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them cell। अब हुआ क्या कि कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। अब लकड़ी के टुकड़े में उसने माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जैसे ना बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बन रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए एक दूसरे से, है ना। तो उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोल दिया, सेल। अब कंपार्टमेंट्स को इंग्लिश में सेल ही बोलते हैं, है ना, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। तब से हमारी ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी की, उसका नाम सेल है। In school laboratories, light microscopes are used to observe objects using different objective lenses। अब जैसे स्कूल का जो हमारा लेबोरेटरी है उसके अंदर भी होते हैं ना माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज तो 10x और 40x तक मिल जाता है ना। तो टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। Explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structures of various materials। अब स्कूल में जाओगे है तो अलग अलग चीजें देखो माइक्रोस्कोप के नीचे, भाई कौन सी चीज कैसी दिखती है। Under the microscope you will see a magnified image of an object। Can you estimate its actual size? अब actual size जो होती है वो estimate करने के लिए हमें ये करवाएगा एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी है ये आपके स्कूल के अंदर होनी चाहिए माइक्रोस्कोप के हिसाब से, है ना। ये डायग्राम है, ये डायग्राम पसंद आता है एग्जामिनर को, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाइए और उसको लेबल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये माइक्रोस्कोप है आपका तो देखा हुआ है, सबसे पहले जहां से हम अंदर झांकते हैं वो क्या होता है, आई पीस होता है। जहां से अंदर तक पूरा देखते हैं वो होती है बॉडी ट्यूब। उसके बाद में हम किसके थ्रू देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। यहाँ क्या होता है, स्टेज होता है जहाँ पे हम हमारे सैंपल को रखते हैं जिसको हमें देखना होता है। नीचे होता है इसके लिए मिरर, है ना। और ये बेस है जिसको इसने पूरा सपोर्ट कर रखा है, ये हैंडल है, और ये इसका फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, और ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है। मुझे इतना डिटेल में इनके बारे में नॉलेज नहीं है, बट जब आप लैब में जाओगे तो आप इनको यूज करके देख सकते हैं कि किस किस पर्पज के लिए ये नॉब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी 2.1 करते हैं कि जो साइज ऑफ सेल है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। अपनी स्केल जो होती है ना जिसपे मिलीमीटर में मार्किंग होती है वो ले लेंगे। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ द व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। अब इसमें हमें सेल दिखेगी, पास में हमने स्केल रख रखी है, तो mm के अंदर जो सेल होती है उसका क्या मिल जाएगा, हमें डेटा मिल जाएगा। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। अब है ना, mm बहुत बड़ा
यूनिट हो जाता है, वैल्यू हो जाता है सेल की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि सेल तो बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं माइक्रोमीटर। अब होता क्या है कि माइक्रोमीटर होता है वो मिलीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। सपोज द डायामीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 mm। मतलब कि जो डायामीटर है विजिबल फील्ड की, मैं एक सेल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा फील्ड की बात कर रही हूँ, जो भी हमने इसके नीचे रखा है ना, उसका अगर 5 mm है तो वो कितना माइक्रोमीटर होगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा 5000 micrometers। Remove the ruler and place an onion peel slide on the stage of the microscope। अब वहां पे अनियन पील की स्लाइड रख देंगे माइक्रोस्कोप में अंदर, जो हम डालेंगे उसको। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। पहले जो हमने डायमीटर लिया है पूरा, उसमें हम काउंट करेंगे स्ट्रेट लाइन में कि कितनी सेल्स आई हुई हैं, कि जैसे ये डायमीटर लिया और यहाँ से सेल्स, ये 5 mm का हमने क्या ले लिया, डायमीटर ले लिया, उसके अंदर ऐसे सेल्स का जो लाइन होगा उसमें हम सेल्स गिन लेंगे, ठीक है, कितनी सेल्स है टोटल। अब वो जो सेल्स होंगी उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई 5 mm में इतनी सेल है, तो एक सेल का डायमीटर कितना है ना। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर ऑफ द विजिबल, तो ये पूरा डायमीटर है, उससे नंबर ऑफ सेल्स को अपन डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियसली 1 सेल का डायमीटर आ जाएगा। बेसिक मैथ्स, राइट। ये यूनिट कन्वर्जन याद कर लेना। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से इंटू करते हैं, mm को cm में करते हैं तो 10 से इंटू करते हैं, और अगर 1 mm को माइक्रोमीटर में चेंज करना है तो उसमें कितने होते हैं माइक्रोमीटर, 1000। ठीक है। सपोज 25 cells are seen along the diameter। In that case, the size of the onion cell would be 5000 micrometer by 25। मतलब एक सेल का डायमीटर कितना हो गया है, 200 माइक्रोमीटर्स। If the estimated size of an onion peel is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? The total magnification of a microscope depends on the magnifying power of the eyepiece and the objective lens। मतलब eyepiece का जो पावर होता है वो, और objective lens का जो पावर होता है वो एक दूसरे को इंटू करना होता है, तब हमें रियल मैग्निफिकेशन पता चलती है। If both the eyepiece and the objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 100x। This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger। मतलब जो सेल इतनी सी है ना, वो 100 टाइम्स, मतलब तो कितना हो गया इसका 100 टाइम्स, 20,000, 20,000 mm की हमें वो दिखाई देगी। Thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure। कोई पूछे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे, a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structures। Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main features। क्या क्या, रेजोल्यूशन जो कि मेजर ऑफ क्लैरिटी होती है, कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कॉन्ट्रास्ट का ना मतलब कोई भी चीज है वो अलग अलग तरीके से हम देख पाए, और मैग्निफिकेशन। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells। You can see picture of the lower surface of Colocasia leaf observed under a scanning electron microscope। अब ये scanning electron microscope जो होता है ना, बड़ा powerful microscope होता है। इसके अंदर हम Colocasia plant की जो leaf होती है उसके lower surface को इसने क्या highlight किया हुआ है, zoom in किया हुआ है ना। अब देखो इस सेल का जो मतलब ये जो लीफ का जो पार्ट है, सरफेस है, अब हमें पता है कि जो प्लांट्स की लीफ होती है उस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो हमें ये स्टोमेटास दिखने लग जाते हैं। इतना ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस सरफेस ऑफ कोलोकेशिया लीफ शोइंग द स्टोमेटा। ठीक है, आ गया समझ में सेल क्या है, सेल को पढ़ते कैसे हैं, किसके थ्रू पढ़ते हैं, जिसके थ्रू पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शंस, है ना, सब आ गया समझ में। अब होता है मेन चैप्टर शुरू, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। होता क्या है इस सेल के अंदर। यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड into specialized tissues and organs and collectively perform specific function। है ना, ये तो पढ़ लिया हमने कि पहले टिश्यूज बनाती हैं, उससे ऑर्गन्स बन जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं सेल्स मिलके सारा, है ना। फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर।
एंड विद देयर सराउंडिंग्स। अब पता ही है अगर सेल्स को एक दूसरे से मिलके काम करना है तो कैसे ना कैसे तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना एक दूसरे से और खुद के सराउंडिंग से भी। दीज इंटरेक्शंस अकर एट द सेल बाउंड्री, और ये जो सारे के सारे इंटरेक्शंस होते हैं ये कहाँ होते हैं, सेल बाउंड्री पे होते हैं। वेयर सब्सटेंसेस मूव बिटवीन सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल बाउंड्री पे क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं सेल्स के बिटवीन, मतलब इस सेल से उस सेल में, उस सेल से इस सेल में, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो अकेले सेल से ही जीते रहते हैं, उनकी भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसी के थ्रू एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के कारण करते हैं तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ भी लेते हैं। यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, मतलब कि जितनी भी जो भी लिविंग सेल होंगी उन सब के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखनी ही दिखनी है। The cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell and protects its contents. It defines the individuality of a cell and also called the plasma membrane। जो cell membrane होती है ना उसी को plasma membrane बोलते हैं। ये क्या करती है, सेल को बाउंड्री प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हर एक सेल की इंडिविजुअलिटी को भी डिफाइन करती है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, परमिएबल का मतलब तो आने जाने की परमिशन देना, सेलेक्टिवली मतलब कुछ कुछ चीजों को, विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग दी अदर्स। जो चीज नहीं चाहिए उसको अंदर नहीं घुसने देगा, जो चीज चाहिए उसको अंदर घुस लेगा, उसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs। अब हमने ये भी देखा है ना भाई, हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जिसकी हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी को, है ना। तो उसमें से ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लंग्स, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में CO2 हमने प्रोड्यूस किया है वो हवा के अंदर वहां पे लंग्स में छोड़ देते हैं। तो वो कैसे होता है, मेम्ब्रेन्स में ही होता है। एल्वियोल मतलब जो लंग्स है उसमें एल्वियोलाई है, एल्वियोलाइज की जो लेयर है वो भी सेल्स से बनी हुई है। तो जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उनका ये फंक्शन होता है कि वो O2 और CO2 का अक्रॉस, मतलब मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूवमेंट कराने का इनका काम है। How does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across this? अब ऐसा तो है नहीं उसमें खुद का दिमाग है कि नहीं मेरे को तो O2 चाहिए, मेरे को तो CO2 देना है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, उसके लिए हमें ये करवाएगा एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of roughly equal size। अब ना दो आलू के पीसेस काट लेंगे बराबर बराबर सी साइज के, है ना। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस यूजिंग द वेइंग बैलेंस। अब इनको क्या कर लेंगे अपन, नाप लेंगे कौन कितने ग्राम का है। पुट अ पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर विद प्लेन वाटर। एक के अंदर तो हम डालेंगे प्लेन वाटर, उसमें डाल देंगे उस पोटैटो को। पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर टू विद 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। इसमें मैंने 20% जो है वो सॉल्ट मिला रखा है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, दूसरा पोटैटो डाल दिया है। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेस। अब अपने को क्या देखना है, वेट करना है, या तो इसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा या फिर अपन रफली कितना बोला है इसने, 1 घंटा तक रख लो उसको उस सॉल्यूशंस में। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पेज। उनको बाहर निकाल के हम वापस से उनका वेट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे ऑब्जर्व दैट बीकर ए जिसमें हमने पानी डाला था उसमें जो पोटैटो था ना वो क्या हो गया, स्वेल हो गया है। और जो बीकर बी है जिसमें हमने सॉल्ट वाला पानी डाला था उसमें पोटैटो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अभी बताते हैं। व्हाट डू यू इन्फर, what do you expect in terms of changes in their weight? हम क्या expect करते हैं, उनका weight का change किस basis पे हुआ है। The weight of the potato piece in beaker A has increased while the weight of the potato piece in beaker B has decreased। beaker A जिसमें पानी था उसमें तो बड़ा हो गया, जिसमें नमक वाला पानी था वो shrink हो गया। This happened because the cell membrane allows the water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules।
मतलब कि जो पोटैटो भी तो सेल से बना हुआ है, तो उसकी सेल्स जो हैं, उसकी जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, वो वाटर को तो इन आउट जाने के लिए अलाउड कर रही है, लेकिन सॉल्ट और शुगर मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं कर रही है। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, मतलब जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, until the concentrations in the two areas become equal। मतलब कि जिस जगह पे पानी ज्यादा है, जिस जगह से पानी कम है किसी भी सॉल्यूशन में, है ना, तो जिसमें पानी ज्यादा होता है वो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसमें पानी कम होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में से पानी तब तक मूव करता रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब तक उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर का मूवमेंट है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 यू, अच्छा, डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड 7.9 फ्रेग्रेंस, मतलब पता नहीं 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे हम यहाँ पे परफ्यूम छिड़कूंगी, फटाफट से दूसरी जगह पे मुझे अच्छे से स्मेल आ जाएगी, या फिर कोई पानी लिया बीकर में, उसमें थोड़ी सी इंक डाली, वो पूरे में फटाफट से फैलने लग जाएगी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, है ना। that matter of intermix due to difference in their concentrations are called concentration gradient। concentration gradient मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह के अंदर concentration में क्या difference है, उस difference को बराबर करने के लिए क्या होता है, फटाफट से जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं और वो फटाफट से क्या फैलना शुरू करते हैं। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट द मेम्ब्रेन। जैसे अभी परफ्यूम वाला बताया ना मैंने, परफ्यूम वाले के अंदर तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मैं यहाँ पे परफ्यूम छिड़कूंगी, दूसरे रूम के अंदर भी थोड़ी देर में स्मेल पहुंच जाएगी, तो वो किसके कारण पहुंच रही है, डिफ्यूजन के कारण। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है। क्यों? ऑस्मोसिस के अंदर हमें किसका यूज हो रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, और डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन का होना ना होना मैटर नहीं कर रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉयल एंटर्स रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब जो पानी है हम प्लांट्स को देते हैं, वो ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाता है उसके पास में, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्या है कि ऑस्मोसिस है। अब मिट्टी जो होती है उसमें ज्यादा पानी होगा, रूट्स के अंदर कम होगा, तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ तो मूव करेगा ना वाटर, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, ऑस्मोसिस, उसी की हेल्प से सॉयल जो है वो उससे पानी ले रही है रूट से। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे पहला है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूलर स्पेस है उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, और जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है इंट्रा सेल्यूलर मीडियम में, मतलब सेल के अंदर जो है उसके अंदर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है अगर वो बराबर है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में कम है और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से इंट्रा सेल्यूलर मीडियम में, मतलब कि सेल के अंदर जो मीडियम है उसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो तो ज्यादा है, और जो वाटर है उसमें क्या है, कम है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है ये इसमें अगर कम है, तो टाइम के साथ में क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगी, बाहर के वाटर को अंदर खींचेंगी। क्यों? ताकि इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, तो वो धीरे टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम होता है सेल के अंदर से। ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम है उसके अंदर तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर कम है,
सेल के अंदर जब कम है मतलब सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, तो वो वाटर क्या होता है सेल से बाहर जाके सॉल्यूशन को उसके बराबर कॉन्सेंट्रेशन में करने की कोशिश करता है, उसको बोल देते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है जब सेल के अंदर से वाटर वो बाहर निकालेगा कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए, तो जो सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। Structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चरली वो बहुत क्या होती है, पतली सी होती है, मतलब 7 से 10 नैनोमीटर्स के बराबर होती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आपसे कोई पूछे कि आपकी सेल की मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, फैट्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड्स और फैट्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो फैट्स और प्रोटीन से क्या बनी होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक साइंटिस्ट ने दिया है, उसने पूरा स्ट्रक्चर दिया है सेल मेम्ब्रेन का कि कैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब कि फैट की दो लेयर बनी हुई होती है, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards with the protein embedded in them। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है कि ये जो लेयर बनी हुई है ना, इसकी कवरिंग मतलब इधर की साइड भी और इधर की साइड भी क्या है, फैट्स है, ठीक है। ये लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इसके अंदर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये बने हुए होते हैं प्रोटीन से, जो कि अंदर की साइड में घुसे हुए रहते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, गेटवेज भी होते हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि लिपिड मतलब फैट, बाइलेयर मतलब दो लेयर, फैट की दो लेयर होती है मेम्ब्रेन्स में। मतलब मेम्ब्रेन की कवरिंग किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है, और अंदर की साइड क्या होता है, प्रोटीन होता है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट्स फ्लूइड। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे फिक्स कर दिया है, नहीं, वो मूव भी कर सकते हैं, वो फ्लिप भी कर सकते हैं, साइडवेज रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कैसी लगती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर लगती है। द प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। अब ये जो प्रोटीन है इससे क्या होता है, ये क्या बना रही है, इसका गेटवे बना रही है कि अगर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे तो वो इसके थ्रू आएंगे। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called mosaic models। अब जो टाइल्स का अरेंजमेंट होता है ना उसको मोजेक बोलते हैं, इसलिए इस पूरे मॉडल को क्या बोल देते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल बोल देते हैं। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through cell membrane। However, cells of plant, fungi and bacteria have additional layer around the cell membrane। अब हमारे अंदर तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं, फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको बोल देते हैं सेल वॉल। व्हाट डू यू थिंक इज द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल। अब प्लांट्स और इन सब में तो सेल वॉल की नेसेसिटी है, बट वो क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इनको कि इनके टाइम के साथ में इनकी सेल के बाहर तो सेल वॉल और हमारी पे नहीं है, क्यों भाई, अभी लेट अस इन्वेस्टिगेट, देखते हैं क्यों है। Prepare a temporary slides of thin peel of onion leaf or royo मतलब cradle lily leaf and mount it with saffron using cover slip to observe plant cells under a microscope। अब एक तो हम ले लेंगे अनियन का लीफ या फिर ये वाला लीफ, ठीक है, उसको हम सैफरनिन से, सैफरनिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, इससे क्या करते हैं हम इसको डाई करते हैं ताकि हमें इसके स्ट्रक्चर्स इजीली दिख सकें, फिर इसको लग देते हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर। Similarly, prepare a temporary slide of cheek cells using scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or the blunt end of the toothpick। अब टूथपिक या कॉटन स्वॉब से अपने गाल पे उसको रगड़ो, ठीक है, उसके बाद में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्लीन ग्लास स्लाइड पे डालो, वो एनिमल सेल हो गया, ऊपर से हमने अनियन लीफ लिया वो प्लांट सेल हो गया, ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेथिलीन ब्लू स्टेन। अब इसमें कौन सी यूज करेंगे हम, डाई मेथिलीन ब्लू स्टेन, ठीक है, एंड केयरफुली प्लेस है कवर स्लिप, उसको ढक दो।
Observe both the slides under the microscope. What do you observe? Onion peel cells or these peel cells are box shaped and regularly arranged. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ये अनियन लीफ की सेल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सैफरन डाला, इसलिए सैफरन किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो वॉल्स हैं ये क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है ना हमें, तो ये क्या है? इसकी सेल वॉल है। और अगर हम देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर क्या है, तो एनिमल सेल के अंदर देखो कितना इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है ना। Whereas cheek cells are irregularly arranged. What do you think is the difference? डिफरेंस पता चल गया ना, इसमें सेल वॉल्स है इसलिए ऐसा है, इसमें नहीं है इसलिए ऐसे, कुछ कैसे भी घूम रहा है। Prepare 2 slides of rose leaf peel and human cheek seal again. वापस से करते हैं and put 20% sugar solution on them. अब उन स्लाइड्स पे क्या डालेंगे हम? 20% sugar solution। हमने पहले जब डाला था तब क्या हुआ था? सेल का जो वाटर है उसको क्या कर लेती है? बाहर खींच लेती है ना। Observe them under a microscope after half an hour. What do you observe? You must have observed that the boundaries of the plant cells remain the same. अब जो प्लांट सेल की बाउंड्रीज है ना वो तो सेम रहेंगे, क्यों? इनके पास तो सेल वॉल है, लेकिन इसके बीच में देखो ये ऑरेंज ऑरेंज छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। ये सेल जो है वो क्या हो गई है? श्रिंक हो गई है, लेकिन वॉल वैसी की वैसी है ना। But their inner content shrinks and the space between the inner and outer boundaries increases. You may observe that the cheek cells on the other hand have shrunk considerably. ये एकदम से ही छोटी छोटी हो गई हैं। तो ये क्या पढ़ लिया है हमने? सेल मेम्ब्रेन को पूरा पढ़ लिया है। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर, और जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक लेयर और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। Cell wall, the outer covering of the cells. In general, plants cannot move from place to place. अब पता है हमें plants जो हैं वो तो rooted होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने घूम नहीं सकते हैं। So they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. अब क्या बारिश आती, तूफान आती है, कुछ भी आता है XYZ, तो क्या प्लांट्स हैं वो तो टूट जाएंगे, मर जाएंगे अगर उनके पास में अच्छा सा स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ नहीं होगा तो, है ना। Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कोई पूछे आपसे क्या होता है सेल वॉल, तो क्या बोलोगे? Plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. अब जो सेल वॉल्स है उसी की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो उसके इंटैक्ट रहते हैं। ऑल्दो rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved mineral can pass through it. जो सेल वॉल है वो पक्की तो होती है, बट वो क्या होती है? परमिएबल भी होती है, तो वाटर और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से पास इन पास आउट कर सकते हैं। Along the selectively permeability of the cell membrane, the permeability of cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. When we place a royal leaf or onion peel in concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. अब उसमें भी यही हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जब हमने सुगर सॉल्यूशन डाला था तो इसमें सेल्स का जो अंदर वाटर कंटेंट था वो सारा बाहर आ गया, तो सेल्स अंदर श्रिंक हो गई थी ऑस्मोसिस के कारण, है ना। However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. अब जो पूरा वो है, पूरा सेल जो है वो श्रिंक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है? ये सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि इंटेक्ट ही पड़ी है। However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. The inner content of the cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps the plant to remain firm in their original shape. अब क्या बोले? आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल क्यों होता है भाई प्लांट सेल के अंदर, तो क्या बोलोगे? हम्म यही बोलोगे ना कि भाई जो प्लांट्स हैं वो बेचारे मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उनके पास में क्या होता है? सेल वॉल होता है। वो सेल वॉल के कारण उनको स्ट्रक्चर के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। तो वो क्या होते हैं? एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं, है ना। Animal cells, such as cheek cells, do not have cell wall. Therefore, when placed in concentrated solution, they lose water
and shrink without a rigid cell wall. यही होता है. एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली. अब एनिमल सेल्स है वो इजीली शेप चेंज कर सकते हैं, कर ही सकते हैं भाई, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. This cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissue. अब ये जो cellular flexibility है, इसी के कारण हमारा पूरा जो ओवरऑल मूवमेंट और फंक्शनिंग है एनिमल टिश्यू का, वो उसको सपोर्ट करती है. The plant cell is primarily made of cellulose, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. अब जो plant cell जो होता है किस चीज से बना हुआ होता है? प्लांट सेल का जो वॉल होता है सेल्यूलोज. क्या बोलेंगे? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर. ठीक है. सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट्स एज रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन. अब जो सेल्यूलोज होता है ना, ये अच्छा, इसी को बोलते हैं अपन वो फाइबर. फाइबर खाओ, पेट अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, तो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. अब जो फंजाई होते हैं या फिर बैक्टीरिया जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो उसके लिए होती है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए होती है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट की, वो सेल जो है वो सपोर्ट मिले उसको, स्ट्रक्चर को. ठीक है. What argument would you give for a necessity of of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals moving from one place to another? अब आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? नेसेसिटी है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की. वाई? क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक जगह ही रहते हैं, तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, रेजिडिटी चाहिए होती है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, फिजियोलॉजिकल रेजिडिटी. तो उसके लिए क्या होता है, वो जो सेल वॉल होता है वो उसको प्रोवाइड करता है, तो उसके पास में है. अब एनिमल्स हैं, हम तो मूव करते हैं, हम तो खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और मूवमेंट तो हमारा सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है ना, एनिमल है हम, तो हमें सेल वॉल की नीड नहीं होती है, तो हमारे पास में नहीं है. What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become flexible as membrane? सोच के देखो, एक प्लांट सेल है, ठीक है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो सेल मेम्ब्रेन जितना फ्लेक्सिबल हो गया, थोड़ी सी बारिश आई नहीं, जमीन में चिपक जाएगा, थोड़ी आंधी आई नहीं, उड़ के चला जाएगा, है ना. यही होगा भाई, अगर नहीं है उसके पास में परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो वो खुद से तो चल के कहीं जा नहीं सकता, तो जहां उसको हवा पानी लेके जाएगा वो वहीं चला जाएगा. करेक्ट. Why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids? क्यों भाई, क्यों होता है भाई? पहले हम लेंगे बराबर के, तभी तो हमें बाद में पता चलेगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि अलग अलग लिक्विड के अंदर डालने से उनमें डिफरेंस क्या आया उनके वेट के अंदर. सही बात है. ठीक है. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल का इंटीरियर, सारे के सारे ऑर्गन्स. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, दिस इज माय इंट्रोडक्टरी वीडियो. अगर आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, क्योंकि अभी मैं आई एम ट्राइंग कि एज सून एज पॉसिबल ये जो बुक के सारे चैप्टर्स मैं डालना शुरू कर दूं. मैंने इनके अच्छे से स्टडी किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं. फिर उसके बाद में मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, चैप्टर वाइज बना दूंगी अगर आप चाहें, या फिर मैं साइंस का अलग बना दूंगी, मैथ्स का अलग बना दूंगी, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है. बट आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय.